হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিতং তস্मै শ্রীগুরবে গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমঃ। নমো ব্রহ্ম কৃষ্ণ করুণা সিংহ দীনবন্ধ জগৎপতি ভূমি সর্বিতা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে ভক্তভাজন ভোগাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাচার্য গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে। সবার চরণে দণ্ডবত দেখি। আমরা গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি এই স্থানের নাম হচ্ছে ধীর সমী। বাবা ধীর সমী, ধীর মানে আস্তে, ধীরে, সমীর মানে বাতাস, বায়ু বাতাস। এখানে বাতাস ধীর হয়ে গেলেন। বাতাসের তো পূর্ণ গতি আছে, গতি দিয়ে চলে, কিন্তু এখানে গতি দিল না। যখন নাকি এখানে কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণের এখানে লীলা হচ্ছে, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা যে চলছে, সেই নিত্য লীলা যখন এসেছে, বাতাস যখন এসেছে কাছে, বাতাস যখন দেখছে এই নিত্য লীলা ছেড়ে আমরা যেতে পারি না, বাতাস গেল না, এখানে দ্বীপ দাঁড়িয়ে গেল। দেখছেন এই ভগবানের লীলা গুলো দেখছেন, সেই জন্য এই জায়গাটার নাম হলো ধীর সমী। এখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তারা দুটি স্ত্রী ছিলেন, জাহ্নবা বসুধা। আর জাহ্নবা বসুধার পিতা ছিলেন সূর্যশেখর সার্খেল। সূর্যশেখরের ছোট ভাই গৌরীদাস পণ্ডিত। গৌরীদাস পণ্ডিত মহাপ্রভু পরিকর পারিষদ। তিনি যখন বৃদ্ধ বয়সে এইখানে বৃন্দাবনে চলে আসলেন, এখানেই ভজন করতে শুরু করে দিলেন গৌরীদাস পণ্ডিত। গৌরীদাস পণ্ডিত এখানে কার ভজন করছেন? শ্যামরায়। যে বিগ্রহ আপনারা দেখছেন শ্যামরায় বিগ্রহ, এই শ্যামরায় বিগ্রহ হচ্ছে গৌরীদাস পণ্ডিত। এখানে তিনি ভজন করতেন। এখানে যখন ভজন করছেন, ঠিক সে সময় পুরী রামে রাধাকান্ত মঠ, যেখানে নাকি হরিদাস ঠাকুরের ভজন কুঠি, সেই হরিদাস ভজন কুটির নাম হচ্ছে রাধাকান্ত মঠ। এই রাধাকান্ত মঠ এখন জমিদাররা তখন অত্যাচার করতে শুরু করে দিল। অত্যাচার শুরু করে দিল, এমনকি ওখানে কোনো সাধু সন্ত থেকে থাকতে দেবে না। যখন এই সিদ্ধান্ত যখন নিল, তখন ওখানে এখানে হচ্ছে গৌরীদাস পণ্ডিতের পরে এখানে ভজন করতে আসেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন আসে, বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রিয় শিষ্য হচ্ছে গোপাল প্রভু। তার শিষ্য হন জ্ঞানচন্দ্র গোস্বামী। এখন এই ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী রাধাকান্ত মঠে থাকতেন। থাকতে পর দুঃখ পেলেন, এখানে মঠ থেকে চালাতে দেবে না, সবাই এখানে অশান্তি করছে। একদিন বসে বসে কাঁদছেন। হঠাৎ দেখছেন যে বৃন্দাবন থেকে কোন একজন সাধু গেছে। সাধু গিয়ে এই ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীকে তখন বলছেন, আরে সাধু, তুমি ওকে চিন্তা করছো কেন? তোমার পরম গুরু আমি দেখলাম ওই ধীর সমী যে সাধন করছেন, ভজন করছেন, তুমি সেখানে চলে যাও, তোমার এখানে সবকিছু হয়ে যাবে। কিন্তু বক্রেশ্বর পণ্ডিত অপ্রকট হয়ে গেছে। তারপর গোপাল গুরু অপ্রকট হয়ে গেছেন। গোপাল গুরুর শিষ্য হচ্ছেন এখন ধ্যানচন্দ্র। তিনি এখন চিন্তা করলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন না, আমার পরম গুরু তো অনেকটার আগে অপ্রকট হয়ে গেছে, সেটা চিন্তা করলেন না। তার কথা শুনে তখন ভাবলেন যে বৃন্দাবনে ধীর সমীরে আমার পরম গুরু বক্রেশ্বর যখন সাধন করছেন, ওনার কাছে আমি পরামর্শ নেবো, এই মঠে আমি থাকতে পারবো কিনা, এই মঠকে ভগবানের সাধন ভজন করতে পারবো কিনা, সেই হরিদাস ঠাকুরের স্মৃতিকে রাখতে পারবো কিনা, এই চিন্তা করে এখানে চলে আসতেন।
বহুকাল হাঁটতে হাঁটতে সময় নিয়ে এখানে চলে আসলেন। এখানে যখন চলে এসেছেন তখন দেখেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত, এখানে গুরু বক্রেশ্বর, তিনি বসে মালা জপছেন। মালা জপছেন, কিন্তু বহুকাল আগে তিনি অপ্রকট হয়ে গেছেন। এখানে মালা জপছেন, মালা যখন করছেন সঙ্গে সঙ্গে এসে দণ্ডবোধ দিলেন, কাঁদতে শুরু করেছেন যে পরম গুরু, যে আমাকে রক্ষা করুন, আমি ওদের রাধাকান্ত মঠটাকে রক্ষা করতে পারবো না, এই রাধাকান্ত মঠটার অত্যাচার করছে, আপনি একটা কিছু কৃপা করুন, আপনি একটু চলুন আমার ওই মঠের কাছে। বলে আরে তুমি চিন্তা করো না, ওটো ওটো ওটো, চিন্তা করতে হবে না, ঠিক আছে তুমি যাও, তুমি ফিরে যাও, ওখানে ফিরে যাও, দেখবে তোমাকে কেউ আর অত্যাচার করবে না, তোমাকে আদর সম্ভাষণ করবে। বিশ্বাস করতে পারছে না, খুব কানাকাটি করছে যে আমি একটু গেলে ভালো হতো, না না আমি বলছি তুমি চলে যাও। তাই ধ্যানচাঁদ যখন এখানে প্রণাম করে যখন বেরিয়ে গেলেন, এই বেরিয়ে যখন যাচ্ছেন, পিছনে পিছনে কে যাচ্ছে সেটা কিন্তু ধ্যানচন্দ্র জানে না। পিছনে পিছনে শ্যামরায় যাচ্ছেন, পিছনে তাকালেন না, শ্যামরায় চলে গেলেন। সেই রাধাকান্ত মঠ, পুরীতে রাধাকান্ত মঠে সেখানে গেলেন। এই ধ্যানচন্দ্রকে দেখার সাথে সাথে যারা বিরুদ্ধ করছিল, যারা অত্যাচার করছিল, তারা সবাই যখন এসে বসে আদর করতে তখন শুরু করে দিয়েছে, সবাই তখন আদর করতে শুরু করে দিয়েছে। এই হচ্ছে গুরু পরম্পরায়। সেই যে পরম গুরু, তিনি কবে চলে গেছেন, তার গুরু তিনিও চলে গেছেন, কিন্তু একজন বিশ্বাস, সে চিন্তা নেই, বাহ্যিক জ্ঞান নেই। বাহ্যিক জ্ঞান থাকলে তাহলে আমি তখনই বলতাম, আমার যদি বিবেচনা বোধ থাকতো তখনই বলতাম আরে আমার গুরু সেই 10 বছর আগে অপ্রকট হয়ে গেছেন, পরম গুরু সেই বক্রেশ্বর গুরু, তিনি এখন আসবেন কোত্থেকে। কিন্তু না, বিশ্বাস, ও বলেছে যখন নিশ্চয়ই আমার পরম গুরু এখানে জপ করছেন। এসেই দেখেন সেই বক্রেশ্বর পণ্ডিত এখানে জপ করছেন। তো এই যে ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে আমি কোনো সমস্যা কোনোভাবে যদি তাকে জানাই, সেই কাতর আবর্তনে নিয়ে আমার গুরু হতে, পরম গুরু হতে পারে, পরম শ্রেষ্ঠ গুরু হতে পারে, চৈত্য গুরু হতে পারে, যে কোনো গুরুর কাছে যদি আমি যাই আমার সমস্যার সমাধান হবে। তা সেই জন্য ধীর শ্রমিক, এই ধীর শ্রমিক, এই ধীর শ্রমিকের জয়দেব একটা গান করেছিলেন, আপনি কীর্তনটা শুনেছেন। ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী, ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী, গোপী পীন পয়ধর্মার্দন, গোপী পীন পয়ধর্মার্দন, চঞ্চল কর যুগ সারি, চঞ্চল কর যুগ সারি, ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী। এই সেই ধীর শ্রমিক, এখানে মহাপ্রভু পরিকর, মহাপ্রভুর পার্শ্বদ এবং আমাদের গুরু পরম্পরায় এইখানে এসে তারা যে স্মৃতিচারণ করেন। আর সেই যে আমাদের পণ্ডিত গৌরীদাস পণ্ডিত, তিনি তারা নিজের সেবিত সেই মানে সামরায় আজকে আমরা দর্শন করতে পারছি। তাই আমাদের দর্শন করে জীবনটাকে আমরা ধন্য করতে চাই। ধীর সমীর কি পঞ্চা কল্পতরুস্য কৃপা সিন্ধু ভয়ী বচ কৌতিতরম পাবন। ये पंचीवट के अंतर्गत ही धीर समीर। अभी अभी जो वहां पर पंचीवट में क्या रास मंडल, वहां के कृष्ण ने पंची बजाई, सारे गोपियों को बुलाया, रास आरंभ हुआ। कितना बड़ा था, कितना दिन का था। भगवान अपनी तारात्रि, तारात्रि माने उन रात्रियों को जो ब्रह्मा के एक दिन में कितनी रात्रि होती हैं, ब्रह्मा के एक रात्रि तक ये पूरा रात चल रहा था, मुझे पता नहीं। तो उस समय में ये जमुना जो कीर्तन हमें अब गाया धीर समीरे, वो हमारे जयदेव गोस्वामी का लिखा हुआ है। धीर समीरे जमुना तीरे, जमुना के तीर में पूरा यहाँ रास मंडल। तो इस समय में रास चल रहा था, उस ब्रह्मा के एक रात्रि तक पूरा शरद पूर्णिमा का चांद उगा हुआ है और पूरा रास गोपियों के साथ में चल रहा है। उस समय में वो समीर माने हवा भी यहाँ पर आकर के, वो कहाँ की हवा है, मलयगिरी की हवा होती है ना, उसमें चंदन पैदा होता है। मलयगिरी का चंदन बहुत फेमस है, वो जगन्नाथपुरी के उस तरफ में मलयगिरी है,
तो मलयगिरी का चंदन लेके हवा उधर नीचे से ऊपर हवा बहती है। नीलगिरी, मलयगिरी, चंदनगिरी, वहां से हवा लेकर के वो ईसा यहाँ पर आई और कृष्ण का रास देख करके वो हवा भी धीरे 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 चलने लगी। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, वहां वनमाली कृष्ण यहाँ पर रास मंडल होता है। देखो हम लोग अभी वहां बताया, 2 लाइन थोड़ा सा बताओ शॉर्ट में जो सार है। हम लोग का जो उद्देश्य है, हमारे कमल मंजरी श्री भक्ति ठाकुर जी ने कीर्तन में वैसे सुंदर सुंदर भाव दिए, मुझे याद आते हैं। हाँ, वृषभानुपुरे जन्म हईबे जावटे विवाह हबो, ब्रज गोपी भाव हईबे स्वभाव आन भाव न रहे। वृषभानुपुरी मानी वृषभानुपुर बरसाने में हमारे जन्म हो, जावट में हमारा विवाह हो और ब्रज गोपियों का भाव हो। ब्रज गोपी भाव हईबे स्वभाव आन भाव न रही। दूसरे कीर्तन में कहते हैं भक्तिवंत ठाकुर, हमारा गोल क्या है? श्रीरास मंडले युगल सेवाय नियुक्त कर आमाय। भक्तिवंत ठाकुर कमल मंजरी कह रहे हैं कि श्रीरास मंडल, ये श्रीरास मंडल है, श्रीरास मंडले युगल सेवाय नियुक्त कर आमाय, ललिता सखीर अयोध्या किंकरी विनोद धरी से पाए। भक्तिवंत ठाकुर अपने आप को कमल मंजरी के रूप में ललिता सखी के अनुगत्य होकर के कहते कि हमको ये युगल सेवा में रास मंडल मुझे नियुक्त कर दो, बिना सखी के अनुगत्य ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता है। सखी का एकमात्र अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं ब्रज, ये ब्रज के रासलीला में अंदर प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी जी और शिव जी भी धक्के खा के आए। इसलिए ये बहुत सारों का लक्ष्य जो अंतिम लीला है, रासलीला चूड़ामणि लीला, सबको अंतिम यहाँ पर आना है। जितना तपस्या करने वालों का सबका अंतिम फल यही है। हमारे शिवजी महाराज ने 60 वर्ष सहस्त्राणी पूरा तप 60,000 दिव्य वर्ष तक शिवजी ने तपस्या की और रास मंडल में प्रवेश करने के लिए, इसलिए उनको यहाँ पर प्रवेश मिला। ब्रह्मा जी तपस्या करके बरसाना का पहाड़ी बने, उन्होंने भी 60,000 वर्ष तक तपस्या की। उसके अंदर में एक और बात थी, रास मंडल में देखा होगा एक तरफ लिखा आसुरी मुनि। वो आसुरी मुनि शिवजी ने एक साथ तपस्या की थी। आसुरी मुनि ने और शिवजी ने एक साथ तपस्या की थी, तो आसुरी मुनि ने भी यहाँ पर रास में प्रवेश किया। जिसे लिखा है आसुरी मुनि, बोलते ऐसे घुसाया क्या? नहीं, वो बात आसुरी मुनि लिखा, जिसे गर्गाचार्य गर्ग संहिता में लिखा है। अगर किसी को देखना है देख लेना कि आसुरी मुनि शिवजी ने एक साथ तपस्या की थी और रास मंडल में प्रवेश किया था। और एक बात, जिस समय में राधा जी और श्री राम में श्राप हुआ था, राधा जी ने श्रीराम ने राधा जी को श्राप दिया कि 100 साल का विरह होगा। राधा जी ने श्रीराम को श्राप दिया कि तू भी असुर बनेगा। वो कौन बना? शंखचूड़ बना। और शंखचूड़ बनने के बाद में अंतिम समय में जो वहां से उसको शंकरशन कुंड में वहां पर उसको मणि निकाल लिया शंखचूड़ का, तो आके रास मंडल में जाके इसमें प्रवेश करके वो कृष्ण में मिल गया। कृष्ण का सखा था श्रीराम। तो ये भी इसके साथ कहानी जुड़ी थी। अब इसके आगे की यहाँ की कथा धीर समीर की और बकरेश्वर पंडित ध्यानचंद गोस्वामी गोपाल गुप्ता थोड़े से हमारे हरिदेव को सुनाएंगे। हरे। इसके बाद में मठ प्रस्थान। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की बंगला बोलते हैं हम लोग। अभी जैसे श्रवण करी किया, आवाज आ रही है वहां तक? बंगला हिंदी वाले है नहीं? बंगला 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 ठीक है, बंगला बोलो। ठीक है, सुनो सुनो बंगला बंगला ठीक है, सवाल बोलो। ठीक है, सुन हम लोग जहाँ उपस्थित हुए हैं, ये स्थान कौन सा है? धीर समीर। धीर माने होता है रुकना, स्थिर हो जाना, और समीर माने वायु, हवा, इसको बोलते हैं सादा भाषा में। तो जब रास हो रहा था, उस स्थिति को देखकर पवन कोई साधारण नहीं, पवन भी देव है, वायु जो है देव है, तो उनकी भी इच्छा हो गई। जो बतास बहुत तेज चल रही थी वायु, वो स्थिर होकर रुक गई। तो इसमें हमारे जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना, धीर समीरे जमुना तीरे, कि धीर समीरे जमुना तीरे। हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं जस्ट जमुना का किनारा है। तो जमुना
हम लोग कहीं भी जाएंगे, आप लोग समुद्र में जाइए या किसी नदी में जाइए, तो हवा कहीं भी अगर धीरे भी चल रही होगी तो समुद्र में या फिर नदी में और तेज लगती है। तो जमुना में जो वायु चल रही थी वो भी स्थिर होकर रुक गई। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण का जो रास हो रहा है उसको देखने के लिए। तो उसको देखने के लिए देवी देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी हमने श्रवण किया, गोपेश्वर महादेव, सब लोग उस रास को देखने के लिए आए हैं। लेकिन किसी का प्रवेश हुआ और किसी का नहीं हुआ। हम लोगों ने वहां पर बंसीवट पे कीर्तन किया था, उसमें एक लाइन आई थी, उडूप तदा डाके पाखी, कि जो उडूप माने चंद्रमा है, चंद्रमा वो भी स्थिर होकर देखने लगे। जो रात्रियों की बात हुई, हमने श्रवण किया कि एक ब्रह्म रात्रि हो गई। वो रात्रि, हमारी रात्रि कितनी 10-12 घंटे के, हम लोग 12 घंटे दिन मान लीजिए, 12 घंटे रात्रि, लेकिन वो रात्रि 12 घंटे की नहीं हुई। अब उसमें भी कहते हैं कि वो रात्रि जब ब्रह्म रात्रि हुई तो चंद्र जो था वो भी भूल गया कि उसको अस्त होना है या सूर्य को उदित होना है। वो चंद्र भी स्थिर होकर रह गया। ये नहीं कि चंद्र, अभी हम लोग आज देखना, रात को देखना, चंद्र एक जगह उदित होगा, लेकिन जब धीरे धीरे रात्रि ढलेगी वो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। लेकिन वो रात्रि में चंद्र की डायरेक्शन नहीं बदली, वो स्थिर हो गई। हर वस्तु, पशु पाखी, स्थावर जंगम, उसमें है कीर्तन में कि स्थावर जंगम जितने भी थे सब स्थिर हो गए। तो स्थिर होने की वजह से ही इस स्थान का नाम हुआ धीर समीर। और विशेष हम गौड़ियों के लिए स्थान अधिक मान्य क्यों है अभी? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत प्रिय, कौन? श्रीमन महाप्रभु के प्रिय परिकर, जिनका नाम गौरीदास पंडित, उनका यहाँ पर समाधि स्थली और भजन स्थली भी है। गौरीदास पंडित का हम लोगों ने श्रवण किया। उनका स्थान मूल में है श्री नवदीप धाम परिक्रमा में गौड़ मंडल के अंतर्गत अंबिका कालना में, कालना में उनका स्थान है। और कालना में जब गौरीदास पंडित रहते थे, हम लोगों ने श्रवण किया, वो डंडा लेके, उनके जो विग्रह है निताई, और उनको डंडा लेकर जब कहीं चले आते थे बिना पूछ के, तो डंडा लेकर लेके आते थे, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो तुम्हारी हम पिटाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सख्य भाव है उनका, गौरीदास पंडित का सख्य भाव है, इसलिए सखा ही ऐसा कर सकते हैं कि डंडा लेके अपने सखा को चला सकें। यहां तक कि माता पिता भी चलाएंगे, लेकिन वो भाव नहीं आएगा जो कि सखाओं के साथ आता है। तो वही गौरीदास पंडित के बड़े भाई सूरीदास सरखेल, जिनकी जो 2 बेटियां जानवा और वसुधा, जिनकी विवाह हुआ नित्यानंद बहू से। अंबिका कालना हम लोग जाते हैं, कालना में जस्ट पीछे, गौरीदास पंडित के स्थान के पीछे उनका विवाह स्थल भी है। वही गौरीदास पंडित अपने अंतिम समय में आकर वृंदावन में यहाँ रहकर भजन किए। और हम लोग चलते हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में जो आज राधाकांत मठ है, जिसको हम लोग गंभीरा कहते हैं, तो उस गंभीरा में राधाकांत मठ में उस समय रहते थे बक्रेश्वर पंडित जी। बक्रेश्वर पंडित श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के एक ऐसे परिकर रहे हैं जिनकी कंपेयर, मतलब तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी कीर्तनिया। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, और एक जगह एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन वो आज तक मुझे फिर दोबारा मिली नहीं, कहां पढ़ी थी, कोई प्रमाण मांगे मैं नहीं दे सकता, लेकिन पढ़ी थी कहीं। उसमें लिखा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि बक्रेश्वर पंडित मेरा एक पंख है, यदि दूसरा पंख मुझे ऐसा मिल जाता ना, तो मैं पूरे तीनों लोकों में भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर देता। दूसरी लाइन जो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में लिखी वो इस प्रकार है, महाप्रभु ने कहा है कि ये ऐसे हैं कि इनकी कृपा से ही मेरा सब प्रचार और सब हुआ, लाइन इस तरह से। लेकिन जो लाइन मैंने पढ़ी वो दोबारा नहीं मिली। तो वही बक्रेश्वर पंडित, वहां पर जब शरीर छूट गया उनका जगन्नाथपुरी में, अंतर ध्यान हो गए शरीर से, वो फिर आकर वही शरीर में फिर यहां रहकर भजन किए। अब उसका प्रमाण कैसे मिला? बक्रेश्वर पंडित के जाने के बाद राधाकांत मठ का जो दायित्व दिया गया उनके शिष्य गोपाल गुरु को, गोपाल गुरु बहुत बड़े प्रकांड विद्वान भी रहे, उसके बाद गोपाल गुरु भी चले गए, उनके बाद दायित्व मिला उनके शिष्य ध्यानचंद गोस्वामी जी को। जब ध्यानचंद गोस्वामी जी उस समय उस मठ में रह रहे थे, तो जगन्नाथपुरी के ही कुछ भक्तों ने, कुछ लोगों ने राधाकांत मठ पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा कि ये जमीन हम लोग ले लेंगे। अब ध्यानचंद गोस्वामी तो भजनशील व्यक्ति,
ज्यादा इन चीजों में पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हमारे गुरुदेव का स्थान हमें बचाना, वो हम कैसे बचाएंगे। तब उसके लिए अब प्रभु के सामने रो रहे हैं। तब किसी ने उनको सलाह दी कि आप यहां से वृंदावन जाओ। हमने आपके परम गुरुदेव बक्रेश्वर पंडित जी को वृंदावन में भजन करते हुए देखा है। अब मेजर जो ध्यानचंद गोस्वामी जो थे, उनको विश्वास हो गया और वो कुछ ही दिनों में वृंदावन पहुंच गए। जब वृंदावन इस स्थान पर धीर समीर पर आए, तब उन्होंने देखा उनके गुरुदेव बहुत ही तल्लीनता के साथ हरिनाम कर रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। जब भाई अवस्था आई, तब ध्यानचंद गोस्वामी जी ने अपने परम गुरुदेव बक्रेश्वर पंडित जी से बातचीत की और उनसे कहा, गुरुदेव अब हमारी जो संपत्ति है उस पे भाई लोग हड़पना चाहते हैं, इसलिए आप ही बचा सकते हैं। तब ध्यानचंद उन्होंने बक्रेश्वर पंडित ने कहा, ठीक है, अब तुम यहां से जाओ और तुम्हें यहाँ फिर दोबारा कोई परेशान नहीं करेगा। जब ध्यानचंद गोस्वामी जी यहाँ से दोबारा गए, पूरी बहुत सारे एविडेंस लेकर यहाँ से, फिर उन्होंने कहा, उसके बाद आज तक उस राधाकांत मठ पे किसी ने कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे स्थानों पर हम लोग का आना होता है, और आना हुआ है किसका? गुरुदेव के और वैष्णव के अनुगत में। और गुरुदेव, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे सिर्फ शब्द हैं, कुछ अनुभव नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ शब्द हैं, लेकिन जो लिखा है किताबों में, गुरुदेव से सुना है, वही बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। यद्यपि मेरे शब्दों का आप पर या किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मन रख लेना कि यही कथा कभी हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी बोलते होंगे। क्या उस दिन का स्मरण हम लोग कर सकते हैं? या अभी हमारे जो महाराज लोग बोलते हैं, उस भाव को लेकर बस सुन लेना कि ये कथा हमारे गुरुदेव ने कभी बोली होगी, इस तरह से। तो ये स्थान बहुत पवित्र। अगर 2 मिनट समय लेना और चाहूंगा, यहाँ पर कुछ भक्त लोग इंग्लिश वाले भी बैठे हैं, तो फर्स्ट, my English is not so much good. I am trying to speak something because some devotees are sitting here. So just now we arrived this place. This place name is Sri Dheer Samira. Dheer Samira. Samir means the wind here. Another side, the Dheer means something has stopped. So when Ras is going on near in the Ras Mandal, Ravansi Bhatta, why? When Krishna played his flute and all gopis are arrived at this place as Bansi Bhatt, and Ras started. Same time the goddess and angels are looking from the sky, and the moon also looking from the sky. Everything's like the Stavar Jangam, means the trees and the birds, animals, all has stopped their velocities and their activities. So slowly the winds also blowing very slowly, completely stopped. So this place name has been Dheer Shamira. And another thing is here is the Samadhi Mandir of Sri Gauridas Pandit. Gauridas Pandit is the Parikar associate of Sriman Chaitanya Mahaprabhu. And another things is the place of Sri Bakreshwar Pandit. Bakreshwar Pandit was the in charge of Radhakant Math. That place name is Gambhira. Now we go every time when we go Jagannath Puri at Parikrama. So Gambhira is the place of Sriman Chaitanya Mahaprabhu. So Bakreshwar Pandit is the prominent associate of Sriman Mahaprabhu. When Bakreshwar Pandit had left body in Jagannath Puri, so in same body Bakreshwar Pandit came and Vrindavan, and he did bhajan here. In the mood, in the glance of the Jagannath Puri devotees and all people, Bakreshwar Pandit is not in this world. But another side, by his eternal body, he came here and he did bhajan. But some people of Jagannath Puri wanted to take the land of Radhakant Math. So the disciple of Bakreshwar Pandit was Gopal Guru, and Gopal Guru also left body. Then his disciple became Dhyanchand Goswami. So Dhyanchand Goswami was crying and he was praying to Lord, how can I protect the property of my Gurudev? Because the people are attacking on this, they want this property.
So anyway, one person advised to Dhyanchand Goswami, I saw to your Param Gurudev at Vrindavan doing bhajan. So by the advice of that people, Dhyanchand Goswami came at this place, Dhir Samira, and he saw by on his eyes to Bakreshwar Pandit. He is doing bhajan, he is chanting Mahamantra, and he is in the mood, eternal mood. So he requested to Bakreshwar Pandit, oh my dear Gurudev, Param Gurudev, please protect me and protect the property of Radha Kant Mutt. So this kind, Bakreshwar Pandit gave many evidence to Dhyanchand Goswami, and he said, now you can go and no problem will come to you. So Dhyanchand Goswami again arrived at Puri, and from that time still now there is no problem with Radha Kant Mutt. That is under guidance of our Gaudiya Sampradaya, in Babaji Sampradaya. So there is a very auspicious place. We came in this place in the guidance of Guru and Vaishnava. So I try to speak. I think you understand, not understand, this is not, but I tried. Anyway, now from there we will go in temple. Hare Krishna. Pancha kalpatrubhes kripa sindhyavecha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Hare Krishna. अपनी गाड़ी को देखो क्या राजा आएगी, चिंता मत करो। मंदिर पहुंच जाएंगे, मंदिर मंदिर पहुंच जाओ, वो खुलेगा तो हमसे। उसको पता नहीं है मंदिर का रास्ते यहाँ से हाय पता, चिंता मत करो, वो पूरा नहीं, वो आ जाएगा, कोई चिंता मत करो, हमारे साथ चल के दिन साथ। अरे सब पहुंच जाएंगे, परेशान मत हो। पहुंच जाना। Thank you.